سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری سرکار نے فرمایا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، لیکن میرا رفیق میرا عثمان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے جنہوں نے 2 مرتبہ زندگی دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جنت خرید لئی ہے۔ اج جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سرکار نال جڑی محبت سی نا جس انداز دے اندر، وہ 1-2 واقعہ جناب دے گوش گزار کرنے نے، لیکن پہلے تے یہ بات یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کوئی بھی صحابی، سارے شان والے نے، سارے وراء الورا نے، کوئی بھی سرکار علیہ السلام دا صحابی جڑا ہے او دی بارگالیہ دے اندر کسے صحابی دی شان دے اندر تھوڑا جہا ادنا جہا جملہ بولن دے نال انسان جڑا ہے گمراہ ہو جائے گا، اہل سنت و جماعت دے نال او دا کوئی لنک نہیں رہے گا، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ پتہ چلیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابی عظمت والے جنہاں نے ایمان دی حالت دے نال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو تکیا ہے، سرکار دی صحبت دے اندر رہے نے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تو بعد ایمان دی حالت دے نال دنیا تو پردہ کیتا ہے، وہ میرے کریم آقا دے سارے صحابی شان والے نے۔ چارے یار نبی دے عاشق جسے کوئی نہ چاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نصاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نصاراں ورگا، نہ ہویا نہ ہوسی آزم اینا جان نصاراں ورگا، آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا۔ اے میرے آقا دے غلامہ دی شان ہے، ہر غلام دی وکھری وکھری خوشبو ہے، ہر غلام دا وکھرا وکھرا مقام ہے۔ کسے نو میرے آقا نے مفسر قرآن بنا دیتا، کسے نو میرے کریم آقا علیہ السلام نے محدث بنا دیتا، کسے نو میرے آقا نے مفتی بنا دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا بھی قرآن دا علم سیکھنا ہوئے تے علی دے کولوں سیکھیا کرو، اگر کسے نے فقہ دا مسئلہ پوچھنا ہوئے تے عبداللہ ابن مسعود دے کولوں پوچھیا کرو، اگر کسے نے منافقین دا علم لینا ہوئے تے حضرت حذیفہ بن یمان دے کولوں، یعنی کہ ہر صحابی نو وکھرا وکھرا علم میرے کریم آقا نے دے دیتا ہے۔ ہر صحابی دی وکھری وکھری خوشبو ہے، جس طرح کہ ایک باپ دے 3 یا 4 پتر ہونا تے جناب چاراں دی شان وکھری وکھری ہوندی ہے، چاراں دا انداز وکھرا وکھرا، چاراں دی فقاہت، چاراں دی سوچ وکھری وکھری۔ اسی طرح میرے آقا دے جننے بھی صحابی نے، ہر صحابی دا مقام شان وراء الورائے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر صحابی دی خوشبو بھی وکھری ہے تے مقام بھی وکھرا ہے۔ میرے ہر سرکار دے صحابی دی خوشبو بھی وکھری ہے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دا مقام بھی وکھرا وکھرا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے قریبی رشتہ داراں دے وچوں نے، اور دوسرے نمبر دے اوپر یار میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنیاں 2 صاحبزادیاں لاجپال نے جناب عثمان غنی دے اوقت دے اندر دتیاں نے، اور عظمت و شان جناب عثمان غنی دی اس تو ود کے کی ہو سکتی ہے۔ کتنی کتب دے اندر روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت دے اوپر تشریف فرما نے، آرام فرما رہے ہیں تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے، کپڑا ہٹیا ہے سرکار دی پنڈلی تو تے دروازے تے دستک ہوئی، جناب اما جان سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھولیا تے کی ویکھیا دروازے تے جناب صدیق اکبر موجود نے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ کون ہے؟ عرض کی تے حضور جناب سیدنا صدیق اکبر میرے والد محترم تشریف لے کے آئے نے۔ میرے آقا لیٹے رہے، کوئی جناب حرکت نہ کی تھی، جناب صدیق اکبر تشریف لے کے آ گئے۔ اس تو تھوڑی دیر بعد دروازے تے دستک ہوئی، پوچھا گیا دروازے تے کون ہے؟ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کیتا جناب عمر پاک ہاں۔ جناب اما جان نے دروازہ کھول دیتا، تشریف لے آیا اندر، سرکار نے کوئی جناب حرکت نہ کی تھی، اسی طرح تشریف فرما ہو گئے۔ تھوڑی دیر تو پھر بعد جناب سیدنا عثمان غنی تشریف لے کے آئے تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ کون ہے دروازے تے؟ عرض کیتا حضور جناب عثمان غنی نے۔ میرے کریم آقا فوراً اٹھ کے بیٹھ کے پنڈلی تو کپڑا بھی ٹھیک کر لیا۔ جدو کپڑا ٹھیک کر لیا، وقت گزریا، محفل برخاست ہو گئی کہ اما جان عرض کیتا حضور جان دی امان ہوئے تے عرض کراں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھ۔ عرض کیتا حضور میرے والد محترم آئے تے تسی اسی طرح لیٹے رہے، جناب عمر پاک آئے تے اسی طرح لیٹے رہے، حالانکہ عمر پاک وہ نے، میرے آقا نے فرمایا جتھوں دی عمر لنگ جاندا ہے نا شیطان رستہ چھوڑ دیندہ ہے، اے عمر دی شان ہے۔ تے جناب صدیق دی شان کی ہے؟ میری سرکار نے فرمایا رب جباری تے قہاری دی عالم دے اندر ہوئے گا، غصے دی عالم دے اندر ہوئے گا، میدان حشر دے اندر رب دا غصہ ٹھنڈا کرنے واسطے میں اپنے صدیق نو پیش کراں گا۔
किड्डे वक्खरे वक्खरे मोती रखने रब ने मेरे महबूब दे यार। अर्ज किया हजूर ये दोने शख्सियत आईयां ने ते लेकिन तुसां कोई अपने हरकत नहीं की, उठ के नहीं बैठे, कपड़ा ठीक नहीं किया। तो लाजपाल ने जड़ा जवाब इरशाद फरमाया, ईमान ना सोने दे कलम दे नाल लिखन दे काबल है। हजूर ने फरमाया प्यारी आयशा, अर्ज किया हजूर हुक्म, फरमाया जिस उस्मान तो रब दे फरिश्ते हया करते हैं, मैं हया किवें ना करा। अच्छा बल्कि सुनो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस दमाद की शान सुन लो, इसका मुकाम सुन लो। मेरे आका ने कितनी अजमत शान आता फरमाइया ने, लेकिन हजूर के नाम के ऊपर अपना सारा कुछ कुर्बान करना अपना शेवा समझा है। आ मैं तेन एक रवायत पेश करता जावा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाले बा कमाल तो बाद दौरे खिलाफत जनाब सैयदना सदीक़ अकबर दा आप अमीरुल मोमिनीन ने, जनाब आप की सखावत आप का चर्चा दूर दूर तक फैलिया हुआ है। बल्कि शाम का एक ताजर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना दे यारां दी सखावत सुन के मदीना शरीफ के अंदर आए। आ गिरद करदा मैं जनाब मुसलमाना दी अमीर को मिलना है। लोगों ने आख्या अगर मुसलमाना दी अमीर को मिलना है फिर तेन मस्जिद के अंदर जाना पएगा। साडी मस्जिद के अंदर ही पार्लीमेंट है, साडी मस्जिद के अंदर ही अदालत है, साडी मस्जिद के अंदर ही फैसले होंदे ने। साडे फैसले सारे मस्जिद के अंदर, पार्लीमेंट हाउस मस्जिद के अंदर, ये सारा निज़ाम मस्जिद के अंदर है। अगर तुसी इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां नूं मिलने फिर मस्जिद के अंदर जाना पएगा। वो ताजर जनाब जड़ा मुल्क शाम दे विचों इमामुल अंबिया ताजदार मदीना दे गुलामां दी शान सुन के होंदा है पिया जनाब हालात हवादसात ज़माना दा शिकार हो गया, मालो मताल लुटिया गया, गरीब हो गया जनाब। हवादसात ज़माना दा शिकार जो होया, जो ओहदे कोल कोई पल्ला नहीं रहा, कोई खाण वास्ते ना रहा, उन्हें आख्या चलो मदीना शरीफ जाने मुसलमाना दी अमीर दे कोल जाने, ओहदे कोलों कुछ इमदाद लैके आने। इमदाद कितनी लैनी है? 3000 दिरहम। इमदाद कितनी लैनी है? 3000 दिरहम। यारो उस वक्त के अंदर 3000 दिरहम की बड़ा क्या जनाब अहमियत होती सी। उस वेले लोगों के कोलों कई कई दिन जनाब खाना ना खाता जाना, लेकिन वो बंदा 3000 दिरहम लैन वास्ते जो मुसलमाना दी अमीर हजरत सैयदना यारे वाले मुस्तफा सीनते दरबारे मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सदीक दे कोल आया। आके अर्ज कीता हजूर सखावत भी बड़ी सुनी है, तुसी अमीर भी हो ते नाले मुसलमाना दी अमीर भी हो, जमाने दे लिहाज नाल भी बड़ी अमीर है, बड़ी सखावत सुनी गई है। मैं जनाब कुछ मकरूज हो गया, मैं मालो मताल उठिया गया है, मेरा कारोबार ठप हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। रब फरमाउंदा है तिलकल अयाम नुदाविलुहा बैनन नास। रब फरमाउंदा है दिन बदलते रहने, कभी इंसान ते गरीबी आ गई, किते अमीरी आ गई। अर्ज करदा है हजूर मैं मुसलमान हाँ, मुस्तफा करीम दा गुलाम हाँ, लेकिन मालो मताल उठिया गया है, हवादसात ज़माना दा शिकार हो गया है। मैनू कुछ खाण नूं दिता जावे, नाले जनाब मेरी जरूरत पूरी की जावे। हुण मस्जिद नबवी शरीफ दा खलीफा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना दी जनाब सोबत के अंदर पढ़ने वाला, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना दी जनाब क़ियादत के अंदर रहने वाला हजरत सैयदना अबू बकर सदीक दी आंखां दे विचों आंसुआं दे कतरे जारी हो गए। फरमाया ओए ताजर होने वाले आज 3 दिन हो गए ने, अनाज दा एक दाना भी मुसलमाना दे अमीर ने अपने हलक के अंदर नहीं उतारिया। आज 3 दिन हो गए ने, सिर्फ एक खजूर चूस के गुजारा पिया करना है। कहने लगा मैं ते बड़ी आस लैके आया सा, पर मैं तेनों खाली नहीं मोड़ांगे, तू इंज कर मेरे उस्मान दे कोल चला जा। अर्ज करदे ने हजूर की आखा जाके मैंने मुसलमाना दे खलीफे ने भेजिया है। आख्या नहीं ये भी दसन की जरूरत नहीं। आख्या की जाके आखा मैं मुल्क शाम के विचों आया है। फरमाया नहीं ये भी नहीं आखना पएगा, बस तू ये जाके आखी मैं मुसलमाना दा, मैं जनाब मुसलमान हाँ, इमामुल अंबिया दा नौकर हाँ, इमामुल अंबिया दा गुलाम हाँ, मैनू इन्ने पैसे चाहिए ने। कहने लगे हजूर उस्मान इन्ने पैसे दे देगा जिहड़ा जुमला सदीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया। फरमाया ओए होने वाले ताजरा जिथे तेरी सोच खत्म होती है उत्थे मेरे उस्मान की सोच शुरू होती है। जिथे तेरी सोच खत्म होती है उत्थे उस्मान की सोच शुरू होती है। वो बंदा जनाब गया जो दरवाजे ते पहुंचा तो की वेखिया हजरत सैयदना उस्मान गनी अपने घर वाले डांट देने पे, जनाब झिड़क देने पे, जनाब डांटते पे ने। आप जनाब सख्त अल्फाज बोलते पे ने। आप बच्चियों को कहते पे ने तुहानू कितनी दफा समझाया है दुध के अंदर शहद मिला के ना पिया करो, ये पैसे जाया ना करया करो, इन्ना रिस्क ज्यादा जाया ना करया करो। वैसे दुध भी मिठा है तो शहद भी मिठा है, ये 2 चीज़ा मिला के ना खाया करो। वो सोची
ਦੋਸ਼ੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3000 ਦਿਰਹਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਗਿਆ ਹੈ मुसलमाना दी अमीर की अतात करने में। जनाब दरवाज़ा खड़काया, जनाब सैयदना उस्मान गनी थोड़ी देर तो बाद बाहर निकले। आपने आके आख्या आप बाहर आए ने, उस बंदे ने सब तो पहले आख्या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप समझ गए ने ये मुसलमान है, आप समझ गए ने ये मुसलमान है। मुसलमान का शेव है जो आपस के अंदर एक दूजे के नाल मुलाकात की जाए, मिलिया जाता है, सब तो पहले अस्सलामु अलैकुम आख्या जाता है। मेरे आका फरमाते हैं जो एक बंदा दूसरे मुसलमान वीर के नाल मिलता है, मुसाफा करता है, मुसाफा करके जो हाथ छड़न तो पहले पहले रब दोवां दे सगीरा गुनाह माफ फरमा दिंदा जे। किड्डियां अज़मतां शाना इमामुल अंबिया दे गुलामों। उस बंदे ने जनाब बाहर आके सलाम किया। जनाब सैयदना उस्मान गनी ने सलाम का जवाब दे के आख्या ओ भाईया तेरी गल मैं बाद विच सुनदा है, लेकिन मैनू देर हो गई है, मैं अपने बच्चों को कुछ तंबीह पिया करता सा, मैनू देर हो गई है, दस जनाब आ मैं तेनों बिठाना है। आपने मैं मेहमान खाने के अंदर बिठाया, मेहमान खाने के अंदर बिठा के जी सब तो पहले चीज़ पेश की, दुध ते शहद का शरबत पेश किया। बंदा परेशान हो गया, कह लगा बच्चियां नूं डांटदा पिया, मैनू शहद ते दुध का शरबत पेश किया करता है। थोड़ी देर तो बाद खजूर का हलवा पेश किया। बंदा फिर हैरान हो गया, कहने लगा घर डांटिया जा रहा है, मैनू नवाजिया जा रहा है। आपने जनाब ये दो चीज़ां पेश करके फरमाया हुण दस किधरों आया है ते की लैण वास्ते आया है। आया किधरों तो लेना की है। अज करता हजूर मैं ताजा रहा मुल्क शाम के फलां गाँव के विचों आया, मेरा मालो मताल उठिया गया है, हजूर मैनू जनाब कुछ पैसे चाहिए ने। जो इन्नी गल की आपने अपने नौकर को आवाज़ मारी, हले उन्हें दसिया नहीं मैनू 3000 दिरहम चाहिए ने, हले दसिया नहीं कि मैं पैदल आया, हले दसिया नहीं कि मेरे को सवारी कोई नहीं। आपने फौरन अपने गुलाम को आवाज़ मार के आखिया वे खादम गल ते सुनना जरा। अर्ज किया हजूर हुक्म होवे, फरमाया जा मेरे गुदाम के अंदर चला जा, फलां ऊँट मालो मता दे नाल लद्या होया जल्दी लैके आ जा। जदों लैके आया आपने फरमाया ऐ लै फड़, इहदे अंदर तेरे घर वालियां वास्ते भी कपड़े ने, तेरे वास्ते भी कपड़े ने, तेरे बच्चियां वास्ते भी कपड़े ने, तेरे जनाब रिश्तेदारां वास्ते भी कपड़े ने, ते ऐ लै फड़ 6000 शर्फियां भी लै ला ते ऊँट भी लै जा। अर्ज करदा सोहणिया मैं समान तो लै जावांगा, लेकिन ऊँट इन्नी दूरों वापस किवें करना वांगा। आपने फरमाया वापस करने वास्ते नहीं बल्कि तेनों मैं तोहफा अता कर दिता जे, मैं तेनों तोहफा अता कर दिता जे। हुण जनाब बंदा चलन लगा, चंद कदम चलिया ते रुक गया। हुण सुनो जरा जनाब उस्मान गनी दी इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना दे नाल मुहब्बत, सरकार दे गुलामां दे नाल मुहब्बत नतीजा कढन लगा। जदों चंद कदम चलिया ते रुक गया, रुक के कहन लगा हजूर अगर इजाजत होवे ते एक सवाल कर लवां। आपने फरमाया जिन्ने मर्जी आ दिल करदा सवाल कर। अर्ज करदा सोहणिया जदों मैं आया सा घर दे अंदर जनाब रौला पैंदा पिया सी, तुसीं झिड़कदे पए सो, बच्चियां नूं शहद ते दे शरबत तो रोकते पे सो, लेकिन मैनू शहद ते दुध का शरबत पेश किया, हजूर मैनू खजूर का हलवा पेश किया। ये बादशाहां दी गज़ा है, लेकिन तुसी मैनू क्यों पेश किया? फरमाया सोने सवालिया जाने वालिया, सोने ताजराए होने वालिया गल सुन, रब ने मैनू मालो मता दिता है, रब ने मैनू दौलत दी है, मैं अपने बच्चियों को समझा रहा सा जे रब ने दौलत दी है तो इन्हों अयाशियां के अंदर ना उड़ा दिया जे, अपन ख्वाहिशात के अंदर ना उड़ा दिया जे, बल्कि अगर रब ने मौका दिता है तो सरकार की मुहब्बत के अंदर सरकार दे गुलामां दा भला कर जाइए, सरकार दे गुलामां दा भला कर जाइए। हजरात किड्डी सोहने। बल्कि दूसरी गल मुख्तसर जी में अपनी बारगाह तबकात एक तबकात शरीफ के अंदर बात मौजूद है, जदों किते मुहब्बत वाली गल याद करनी होवे ते ये मैं हदीस पढ़ना सुनो तो उसी भी तरह मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजरत सैयदना उस्मान गनी 4-5 दिन वास्ते मदीना शरीफ दे विचों बाहर गए ने, दिल दे कन्ना दे नाल गल सुननी है ते नाले वेखना है जनाब उस्मान गनी अपने नबी नाल किन्नी मुहब्बत करते हैं ते असीं 11 दोस्तां दे नाल मुहब्बत करने असीं अपने आका दी मुहब्बत दा दम छड़ के गैरां दी गुलामी के अंदर लिबास भी गैरां वाला, कारोबार भी गैरां वाला, रहन सहन भी गैरां वाला, सानू अपने नबी दे तकाजे दे नाल मुहब्बत ही कोई नहीं, सानू अपने नबी दे दीन नाल मुहब्बत ही कोई नहीं। लेकिन सुनो जनाब उस्मान गनी दी मेरे आका दे नाल मुहब्बत। 4-5 दिन तो बाद मदीना शरीफ के अंदर वापस आए ने। सहाबा दा वतीरा हुंदा सी जदों जंगल जब सफर तो वापस होना सीधे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मेरे आका दी ज़ियारत करने वास्ते हाजिर हो जाना।
जाना। जनाब उस्मान गनी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आए ने, पानी नहीं पीता, बच्चियां नहीं मिले, घर के अंदर नहीं गए, ऊंट खड़ा किया तो वेख्या कि इमामुल अंबिया के चेहरे ते नकाहत दे असार ने, मेरे आका के चेहरे के उपर कमजोरी के असार ने। इमामुल अंबिया के प्यारे गुलाम जनाब उस्मान गनी ने हजरत बिलाल को पूछा, बिलाल 4-5 दिन वास्ते मैं मदीना शरीफ तो बाहर की गया, मेरे आका के चेहरे की रौनक नूं की हो गया है, अज करते ने सोने अगर इजाजत होवे तो मैं दस देना। फरमाया बिलाल दस की गल है? अज किया 4-5 दिन हो गए ने मेरे आका ने ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, मेरे आका के उपर फकरो फाका दा जनाब दौर गुजरता है पिया। जनाब सैयदना उस्मान गनी दरे दौलत के उपर चले गए ने। जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा जान आयशा सदीका घर के अंदर मौजूद ने, हाथ बन के अर्ज किया, अम्मा जान वजह की है? फरमाया अज 5 दिन हो गए ने तेरे आका ने कुछ नहीं खाता, घर वाले कुछ नहीं खाता, तेरे आका नूं किसी ने कुछ खाण वास्ते नहीं दिता। अर्ज किया अम्मा जान तुसी पर्दे के अंदर चले जाओ। हजरत सैयदना उस्मान गनी सफर तो आए ने ते पानी का प्याला भी नहीं पीता, पानी का प्याला भी नहीं पीता। जनाब अपने घर के अंदर गए ने, गोदाम के अंदर गए ने, आटा चकिया अपने जनाब मोढे के उपर, घी चकिया अपने मोढे के उपर, समान चकिया। 20 नौकर जनाब उस्मान गनी के घर के अंदर ने। गुलाम कहते हैं हजूर इजाजत होवे ते अज मैं चक लवां। फरमाया पिछे हट जाओ, अज जिन्हां दी खिदमत वास्ते मैं जा रहा हाँ उन्हां दी शान के अंदर रब ने कुरान दीयां आयतां नाज़िल कीतियां ने। मैं अपने नबी की खिदमत वास्ते जाना है। फिर जो हजरत सैयदना उस्मान गनी अपने इमामुल अंबिया के दरे दौलत के उपर आ गए, अपने हाथों के नाल अग बाली, आटा गुन्निया, रोटियां तैयार कीतियां। जो रोटियां सालन तैयार कर देता, मस्जिद नबवी के अंदर गए ने, अर्ज किया हजूर अगर इजाजत होवे ते घर तशरीफ लैके आओ। जो इमामुल अंबिया घर तशरीफ लैके आए ने, हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खाना पेश किया, मेरे आका नूं की पेश किया, खाना पेश किया। पहला लुकमा जो तोड़िया ना मेरे जनाबे सरकार ने, तोड़ के अपने मुंह दे विच पाया ते 600 दिरहम जनाबे उस्मान गनी ने जमीन के उपर रख दिते। मेरे आका ने पूछा उस्मान आ की है? अर्ज की सोने वो दौलत की करनी है जी सरकार के कदमों तो कुर्बान ना की जाए। 600 दिरहम जनाबे उस्मान गनी ने सरकार के पहले लुकमे के उपर रब के रस्ते के उपर खैरात कर दिता। ये मुहब्बत नहीं थी और की है? फिर ये सरकार ना असी की कर रहे हैं अजकल? साड़ियाँ दौलतां किधर जा रही ने? साड़ियाँ पूरियां जनाब असी पिछे फेसबुक भरी होंगी है जनाब, नौजवान ने रात को सौन लग्या जनाब स्टेटस ला दिंदा भी कोक दा ते जनाब पैप्सी का बाईकाट कर दिओ, तो सुबह को सब तो वड्डा हाजी नौजवान बनया होंदा। ईद वाले दिन या ईद तो पहले गालबन कोई एक्सीडेंट होया किसी का, तो साड़ी आवाम जनाब पैप्सी भी चक के लै गई तो कोक भी चक के लै गई है ना। ये मुहब्बत ना साडी सरकार ना। एक ऊँटनी का बच्चा जनाब कोई वडेरा उसकी लत्त कट दे तो पूरा सोशल मीडिया हरकत के अंदर आ जाए, फलस्तीन पूरा तबाह हो जाए तो सानू जनाब जाग ना आवे, कश्मीर सारा लुटिया जाए तो सानू जाग ना आए, चिचनिया सारा तबाह हो जाए तो मुसलमान आराम ना सुता रहे। ये मुहब्बत है ना साड़ी सरकार ना। फिर आज मुसलमान घर दर से कुरा हमने ना बुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरा होकर। दुआ करो मालिक दी बारगाह च अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।